Good morning, students. Today we will discuss our topic thrust and pressure. Okay, what is thrust and what is pressure? The force acting on an object perpendicular to the surface is called the thrust. Okay, what is thrust? ये एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली लगता है, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, मतलब उसके सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, दैट इज नोन एज द थ्रस्ट. इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. एंड व्हाट इज प्रेशर? द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है इससे? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज thrust upon area. Okay, what is the SI unit of the pressure? It is Newton per meter square. Okay, SI unit of pressure is also Pascal, denoted by PA. Okay, there are two SI units of pressures. Pressure depends on two factors: force applied and the area of surface over which force acts. Okay, pressure depends on two factors: the force and the area. How much force is applied and what is the surface area on which the force is applied? Both factors plays an important role for determining the pressure. Okay, examples of pressure: the base of high buildings is made wider so that weight of walls acts over a large surface area and pressure is less. Okay, so the higher the buildings, the wider is the base. Okay, so base will be wider for the high buildings so that the large surface area they can bear a lot of pressure, okay, of the whole height. School bags are having broad straps so that the weight of school bags fall over a larger area of the shoulder. Okay, so for reducing the perpendicular force on the school bags which are having broad straps, okay, which produces less pressure and become less painful for the students. The blade of knives is also an example, are made sharp, so very small surface area, and on applying force it produces large pressure and cuts the object easily. All liquids and gases are fluids and they exert pressure in all directions. Okay, all the liquids and gases. Now we come to the next liquids pressures. Okay, we will talk about the liquid pressures, how they act the forces. Okay, how they apply the forces. All liquids and gases are fluids and they exert pressure in all directions. So the force which is applied by the fluid is known as the buoyancy, upward force. Okay, the upward force experienced by an object when it is immersed into a fluid. The upward force experienced by an object when it is immersed in a fluid is called the force of buoyancy. It acts in upward direction and it depends on the density of the fluid. ये जो अपवर्ड फोर्स लगता है किसी भी फ्लूइड का, ठीक है, जो हम किसी भी चीज़ को अगर इमर्स करते हैं, मतलब डुबोते हैं पानी के अंदर, तो पानी क्या करता है, नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगाता है. उस अपवर्ड फोर्स को जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको बोला जाता है बुओयेंसी, और वो डिपेंड करता है उस लिक्विड के डेंसिटी पर, मास पर यूनिट वॉल्यूम पर. ठीक है. When the force of gravitational attraction of the earth on the surface of the object, जब force of gravitational attraction जो अर्थ का है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कम लग रहा है then the buoyant force exerted by fluid on the force of the surface of the object will float in the fluid. इसमें हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं हमारी NCERT बुक्स में. ठीक है. When an empty bottle is will try to immerse in the liquid, it will get float on the surface but not get immersed until or unless we applied a large amount of force to immerse it completely. Okay, so whenever the force of gravitational attraction of the earth on the surface of the object is less than the buoyant force exerted by fluid, then the object floats in the liquid. And when the object sinks in the fluid, वो object sink कब करेगा fluid पर? जब force of gravitational attraction जो अर्थ का है उस सरफेस पे लगने वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बुओयेंट फोर्स से. ठीक है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स है वो बुओयेंट फोर्स से जब ज़्यादा हो जाएगा उस फ्लूइड के, तभी वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा. ठीक है. तो द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन शुड बी हायर देन द बुओयेंट फोर्स.
for any object to sink in that fluid. This is the reason why alpine sinks and board ship floats on the surface of water doesn't sinks. Okay, एक छोटा सा alpine होता है वो डूब जाता है, लेकिन जो बोट होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, वो फ्लोट करती हैं. ठीक है, तो आर्किमेड्स प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम उसके डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है ये. ठीक है, ऐसा होता क्यों है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है. जो बुओयेंसी फोर्स है, अलग अलग लिक्विड्स की अलग अलग डेंसिटी होती है. दैट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स. ओके, एंड द ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो हैविंग द डिफरेंट डेंसिटीज. So if the object is density is higher than the fluid density, then it will get sink, and if the object density is less than the fluid's density, then it will float on the surface of the fluid. Okay, if m is the mass and v is the volume, then density is equal to mass per unit volume, and SI unit is kilogram per meter cube. So what is the Archimedes principle? Archimedes principle shows that if it states when a body is immersed fully or partially in a fluid. Okay, जब किसी बॉडी को इमर्ज किया जाता है फुली और पार्शली, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है. वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट. जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है. इस एक्टिविटी में यही शो किया है. स्टोन को टाई किया हुआ है, ठीक है, उसको फिर हम सिंक करते हैं पानी बस से भरे हुए जार में. तो पानी क्या होता है, डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, और वो जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ही, जितना उस स्टोन का वेट होगा उतना पानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे. जब बॉडी को इमर्स कर रहे हैं हम, तो फ्लूइड क्या कर रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है. वो कितना फोर्स लगा रहा है, उस स्टोन के वेट के बराबर के. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इमर्स करते हैं तो जो बुओयेंसी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमेड्स प्रिंसिपल. इट इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, आर्किमेड्स का जो प्रिंसिपल है उसका एप्लीकेशन है रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने में. रिलेटिव डेंसिटी हमें दो सब्सटेंस की कैलकुलेट करनी होती है, इसकी डेंसिटी क्या है. ठीक है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए आर्किमेड्स प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है. शिप्स को डिज़ाइन करने में, सबमरीन्स को डिज़ाइन करने में, सो दैट दे कैन फ्लोट ईजीली. एंड ओके, सो दिस एप्लीकेशन is of great use. Archimedes principle. Hydrometers and lactometers are based on this principle. Hydrometers और lactometers भी इसी principle based होते हैं. It is because of this ship made of iron and steel floats in water, whereas a small piece of iron sinks in it. ठीक है ना, इसी वजह से क्या होता है कि जो शिप होता है जो कि आयरन का बना होता है और स्टील का बना होता है, पानी पे तैरता है, जबकि एक स्मॉल पीस जो होता है आयरन का वो सिंक कर जाता है. Relative density, the ratio of the density of substance to that of the density of water is called the relative density. जब भी रेशियो निकाला जाता है किसी भी डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का उसके डेंसिटी ऑफ वाटर से. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपैरिजन में जब भी हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये एक रेशियो है. ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे. रिलेटिव डेंसिटी गोल्ड की 19.3 है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, हमें फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ गोल्ड. हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह डेंसिटी ऑफ गोल्ड आ जाएगा. ठीक है, और वाटर और रिलेटिव डेंसिटी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आएगी वैल्यू 19.3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर. Mass is given of 3 aluminum is 67 किलोग्राम. ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम. तो मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी. मास ऑफ ए ब्रिक इज गिवन एंड डायमेंशंस आर गिवन. फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड. इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद डिफरेंट फेसेस. अलग अलग फेस से अगर वो रखा हुआ है तो उसकी हमें क्या करना है, प्रेशर एक्सर्ट करना है. ठीक है, तो जब डायमेंशंस ऑफ द ब्रिक, ये तो वही रहेगा, एरिया उसका वही रहेगा. ठीक है, वेट जो होगा उसका ब्रिक का, वो कितना फोर्स लगाएगा, mg के बराबर लगाएगा. दैट इज़ 24.5 न्यूटन. ठीक है, तो हमने फोर्स लगा लिया कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रहा है, 24.5 न्यूटन. जब सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में, तो एरिया हो जाएगा उसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, उसको हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे. ठीक है, और
ये प्रेशर जो आएगा इसका फोर्स अपॉन एरिया, मतलब थ्रस्ट अपॉन एरिया से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रेशर लगाएगा, दैट इज़ 4900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दूसरा है जब सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रहेगा तब एरिया हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ही कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा एरिया होगा थ्रस्ट उतना ही कम लगेगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर भी उतना कम लगेगा, जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो 1225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द प्रेशर हियर, ठीक है, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। Force of 20 Newton acts upon a body whose weight is 9.8 Newton. What is the mass of the body and how much it is acceleration? फोर्स लग रहा है मतलब वेट के बराबर लगता है, 9.8 न्यूटन उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है तो 9.8 जो उसका वेट है वो mg के बराबर हम पुट कर देंगे तो मास आ जाएगा 1 किलोग्राम। फोर्स इज इक्वल टू एम से हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैन वेज 1200 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट इज हिज मास? Who was taken to the moon, his weight would be 200 Newton. What is mass on the moon? 200 न्यूटन है वेट ऑफ मन ऑन अर्थ, ठीक है, और 200 न्यूटन तो 1/6 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। 120 किलोग्राम इज इट इज कॉन्शियस, सो मास ऑफ मून 120 किलोग्राम, so it is 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द जी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। जी की वैल्यू भी कम हो गई मून पर। Object is thrown vertically upwards and reaches a height of 78.4 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया था, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v 0 है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुज वेट इज 49 न्यूटन। तो मास उसका निकालना है जिसका वेट 49 न्यूटन है, mg के बराबर कर देंगे, m इंटू 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 49। वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा हमारा जो g की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू आ जाएगी 5 kilogram, okay। In this way we will solve these examples and do the study these topics, okay। So write these notes and learn them also, definitions of Archimedes principle, buoyancy force, thrust and pressure, okay। These are all in relative density, these are all important topics of this chapter, okay। Thank you, have a nice day.